शरीन जी बतलाएंगे। हम सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा खान पान होता है, हमारा आहार होता है, वो योगा का एक इंटीग्रल पार्ट है। केवल योगा करने से नहीं होगा, हमारा खान पान भी ठीक रखना होगा। तो आज हमारे गेस्ट स्पीकर श्री संजीव सरीन जी हैं। उनका हम mindexcel.org के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करते हैं अपनी टीम की ओर से। बिफोर वी बिगिन द सेशन, मैं थोड़ा सा संजीव सरीन जी के बारे में इनके बारे में बता भी दो। हाँ, यस यस, वही पीपल मस्ट नो अबाउट हिम। यस यस। Sareen sir, by profession, he is a graduate engineer, and he is having a very, being a science graduate, he is having a very analytical brain, and he retired from the Reliance Industries, Reliance Manufacturing Industries of Allahabad as a project head. इसके पहले ये बल्लारपुर यूनिवर्सिटीज, LML, JCT, रेमंड्स, रिलायंस, ये सभी यूनिट्स में ये काम कर चुके हैं। इन्होंने, इनके क्रेडिट में 2 बुक्स भी हैं जिसके बारे में अभी हम लोगों ने माइंड एक्सेल में बतलाया भी लोगों को। ई बुक्स हैं। एक है साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर इन्होंने एक ई बुक लिखा है जो अमेज़न पर अवेलेबल है। दूसरा है इनकी एक छोटी छोटी पोएम्स की, कविताओं की संग्रह है जो ईश्वर कौन, कहां और क्यों, ये बुक लिखा है। सरीन जी से मेरा पहला परिचय हुआ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के इलाहाबाद चैप्टर में इनका लेक्चर था इसी सेम टॉपिक पर, साइंस ऑफ ईटिंग पर। पार्ट 1 मैं सुन पाया था, तब से सरीन जी से मेरा परिचय है। तो आइए एक बिग राउंड ऑफ एप्लॉज के साथ हम सरीन जी का स्वागत करते हैं तालियों के साथ, एंड इनवाइट करते हैं आज के गेस्ट स्पीकर श्री संजीव सरीन जी को स्टार्ट हिज प्रेजेंटेशन। Thank you, sir. Good morning, everybody. गुड मॉर्निंग। Minor correction in your introduction. I didn't retire from science as a project head. I was unit head there, Allahabad Manufacturing Division. And okay, here we begin with the subject of science of eating. So I suggest that kindly you may start the recording so that later on anybody wants, he can have an access to it. Yeah, we have started recording, sir. Thank you. Am I audible and visible clearly? You are audible, sir, and yes, clearly. Okay, fine. So on any subject, before we begin, is important that we first know where we are, where we want to go, how we want to go, so that the journey becomes easy and comfortable. So so to understand that where we are, so on this subject of eating, I will just like to interact few short questions. So I'll suggest that kindly mention on chat box what I am trying to know. So if I ask how important is the subject for us, of course, the participants, their presence itself means is important, but still, I just wanted to know what importance do we give to the subject? Is it a little, B, medium, or C? Just write A, B, or C, anything, or in the chat box, in the chat window.
So as I gather, most of all of us understand that the subject is of high importance. So maybe by mistake someone has said A also. So I'm sure he will change, he or she will change the opinion once we go through it. My next question will be, what is our knowledge on the digestion process? If we say that the subject is important for us, then what is our knowledge? Is it low, medium, or high? So kindly mention it on the chat box. Fair enough, fair enough. People are quite honest in admitting that the knowledge is quite medium. And I'm sure that that feedback will also change when we go through it. What is our knowledge? This is what we are assuming. Okay, let's see. Then how seriously we apply our knowledge. Whatever knowledge we have, we say that most of us would know it, at least some part of it, that okay, this is what is to be done, this is right, this is not right. But how seriously we apply our knowledge? Kindly, just one or more questions. Then I'll be straight away taking you to the subject. So seriously. Hello, sir. Yes. I'm audible. Hello, Yeah. hello. Yes, yes, your voice is coming. Okay, so good morning, first of all. I say, what would I say? Whatever we know, if we apply that, then there is no problem. Thing is that we know, but we don't apply. That is the main question. Okay. I'm taking you people in those lines only. I know it. Okay, then the next question is, most of the sicknesses are related to wrong eating habit. You must have heard this thing. Do we agree? Definitely, you are 100% right. Kindly write it on the chat box, because then it becomes easier for everyone to understand. We don't agree, or we are not sure, or we completely agree? Kindly just write on the chat box. Fair enough. Okay, little about myself, why I'm here, and my background, as Prashadji has already introduced. I'm from engineering background. I'm not a medical professional. Someone may be wondering that this is not a subject of an engineer, but in case you have this interest, so one can learn anything. But what did I learn this? How did I come across this subject? So that's what I'm saying. See, it started from my spiritual master, where I go for meditation, and great emphasis is given over there on this subject, because both things go hand in hand. You learn over a period that how they go hand in hand. If you're meditating and you want to progress, and you are not conscious about the subject of eating, you're not taking care of your health, what you are eating, your evolution, your progress will be affected. So this is what we are taught there on the subject. Then from there, my inner quest, that I wanted to explore further on it. So there's nothing that I have done some this thing. Things are all available easily, and one can explore it. So I did my own study on it and my own experience on the subject of, and so I've been
delivering this subject both on scientific and UD principles. And it is, I tell you, it's my responsibility. One may wonder that, I said it earlier, is there in your this thing introduction that is going to be in two parts, part 1 and part 2, and is going to be maybe 1.5 hour each. So one may feel that is going to be stressful or boring. I tell you, I tell you, is my responsibility. And I assure you that at the end of the day, you will find that there was a lot to learn. So here I suggest that kindly keep a notebook and pencil in case you are not having, because you are going to find many new dimensions. And all those people who said that, okay, they have a quite fair knowledge, they'll find that there were still many things, new dimensions to the subject, and certain things which promote that, okay, what to do, what not to do. And if supposing you find that there were maybe 50 things, and that you will forget at the end of the session that what all. So in case you have a notebook, it will be handy. And why I'm here, it is simply my sincere aim to serve others, nothing more than that. So that if I found that I have something to share, I have learned something over a period, so others should also get benefit from that. So this presentation will be in 5 topics. First will be understanding the process. See, why I'm starting from the basic, because if I straight away tell you, okay, don't do this, you'll find you have heard it many number of times at many places. There are thousands of videos on YouTube and all these things. But if I take you from the why I mean how the system works, what the system involves. If I ask you, do we know it, how each and every organ works, we may not be knowing. And then sickness is associated with wrong eating style, the natural food, UD guideline, the spiritual dimension. So today I'll be covering these two subjects, first two subjects, understanding the process, sickness is associated with eating habit. Okay, and at the end of the day, what you be learning, I'm just sharing it beforehand. You be knowing it, okay, what is the purpose of eating? What are the main root causes of our sicknesses? What are the different organs in digestion process and their roles? Different categories of food we eat. The digestion process starts when? Is the digestion process same for all foods? In what form the different foods get converted before assimilation into blood? Then what is the total digestion time? Role of large intestine. Then what is the emptying time of stomach? How much time does it take the food once it enters the stomach to empty out? Then what is the role of liver, gallbladder, pancreas? Then what is the effect of presence of food in the intestine on stomach? I mean, when the food is present still in the intestine, so something happens on the stomach. What is that? Then significance of pH. pH is an indicator of acidity, alkalinity of the food in the digestion process. What affects the secretions of enzyme? You know, all the digestion takes place with the help of secretions, various secretions. So what affects? I mean, where fiber gets digested, probable causes of constipations, issues with consumption of excess protein, issues with consumption of milk, issues with low carb diet. So before I take you further, so just a feedback, is it okay? Am I going audible? Is it okay? Language is okay. Should I go with the English or English mixed with Hindi and all these things? Is it okay? Or is there someone who says he can't understand or he or she can't understand Hindi? So in case I touch More Hindi. No Hindi? More Hindi. Okay, I'll go. Hindi. But I hope there is nobody who says that he doesn't understand Hindi, because if only there is a one person, so I'll have to cater to that also. Okay.
Okay, introduction. We say good food. So how do we define good food? Is it just that tasty? No, is to do with the digestion. So if the system is not working and we feel bloated, gassy, uncomfortable, you can't say you had a good food. It is not a good meal. So it's all about digestion. So this presentation is to help us understand the root cause of common sicknesses and the ways to address it. Now, our attitude towards eating is largely limited to taste. Our ignorance towards what हमारे digestion process में क्या चलता है, हमें कोई concern नहीं होता. क्या आप में से कितने लोग होंगे या कोई है तो let me admit it, और कि अभी मैं खाना खाते समय मुझे मालूम होता है कि अभी क्या हो रहा है. लार्जली ऐसा नहीं होता. हम ज्यादातर लोग सभी लोग हमारा जो कंसेप्ट है ईटिंग का टेस्ट, दैट्स ऑल. ये टेस्टी होना चाहिए एंड देन वी फॉरगेट इट. बट अनफॉर्चुनेटली वो आपने तो अपना खाना खाने के बाद सोचे हैं कि भी ओके जॉब ओवर. नो, जॉब इज नॉट ओवर. जॉब जस्ट स्टार्ट्स. आपने अपना खाना खा लिया लेकिन द प्रोसेस हैज जस्ट बिगन, बट वी डोंट नो व्हाट इज दैट प्रोसेस. और वो प्रोसेस सही चल रहा है, गलत चल रहा है, वो हमारे आगे जो पूरा लाइफ को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. और अगर हमारी लैक ऑफ विल है चेंज होने की तो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है. सो remember, once food is ingested, we have little control. आप उसके बाद वो प्रोसेस चलता है कई घंटों तक, ऑटो में चलता है. हमारा काम उस पर कंट्रोल बहुत कम होता है क्योंकि उसको एक प्रोसेस के थ्रू फॉलो करना होता है एंड डिलीवर द आउटकम अंडर द कंट्रोल ऑफ नर्व्स. डू वी नो व्हाट इज द आउटकम? Anything, any in one or two words, one can write on chat or one can say what is the expected outcome. Okay, we'll see. So basic understanding, just a short video so that it helps in understanding the things in a better way. About 4 weeks' time. And however well-mannered we are about getting food into our mouths, there's not much decorum about what happens next. Food doesn't simply fall from mouth to stomach. Your brain triggers waves of muscular contractions that squeeze things along your esophagus at around 2 inches per second. The first place it reaches is the stomach. It's really a biological blender, a churning pool of digestive juices to break down food into easily absorbable ingredients. Leaving the stomach, things are already unrecognizable. Bile, produced in the liver, is added to help the breakdown of fats. At all stages, the body is extracting the nourishment it needs from the passing flow. The walls of our intestines are a vast surface of cells that absorb proteins, sugars, and fats into our blood. It's these that will provide the energy we need for life. Okay, we'll see more of it. Move forward. So, understanding the process. So, what do we mean by process?
प्रोसेस इसको आप अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो इसको जस्ट लाइक आप मान लीजिए कि आप खाना बनाते हैं कुकर में, उसमें क्या है, इज ए प्रोसेस, देयर आर सर्टेन इनपुट्स, उसके अंदर कोई प्रोसेस कंडीशंस होती हैं, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, उसमें कुछ एडिटिव्स होते हैं, ये मसाले वो मसाले एंड ऑल दिस थिंग, एंड देन सर्टेन आउटपुट, उसके बाद उसका टाइमिंग एंड ऑल दिस थिंग. So similarly, that this digestion is also a process where there are certain inputs in our control, certain recipe in our control, certain process condition partially in our control. We'll see some fixed batch time, preset, different for each input, not in our control. Certain catalyst and additive, largely not in our control. What are the catalyst and additives? हम जैसे खाना खाते, खाने के साथ हम नींबू, अचार, ये सब चीजें, ये सब कैटलिस्ट एडिटिव्स हैं, हमारे डाइजेशन को एड करते हैं, हेल्प करते हैं. सिमिलरली हम प्रोसेस की बात कर रहे हैं कि हमारे डाइजेशन प्रोसेस में कैटलिस्ट एडिटिव्स हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो नर्व से होते हैं, ऑटो में चलता है. Then control system, auto set, and finally some expected output, which I asked earlier. What is that expected output? It is energy. Taste is fine, but what finally we are going to get? We need energy required for repair and development of body cells and tissues, functioning of various organs. Of course, we require sufficient power, called life force, to be there in various organs, because if we don't have life force, we have a beautiful system, but there is no life force in that. Will it work? No. So there can be in bodies the life force is not sufficient. So what Prashad is doing, as say, this is one of the method, yoga and all this thing, to help improve the health of our organs, so to improve the life force. So, and we are not covering that in this presentation, how to improve the life force, but I have just touched. So we can understand easily that if our inputs are varying, recipe is not followed, additives are not cared, and process conditions which are in our control are disturbed, output cannot be consistent. And what is output? Being energy. It means हम कुछ भी खाएं, कैसे भी खाएं, क्या conditions हो, कोई उसका concern नहीं हो. Can we say our output will be consistent? Any layman can say, no, it will not be consistent. But our expectation still will be, okay, it has to be consistent. Whatever I do, it is tasty, and now output has to be consistent. No, it doesn't work that way. Digestion system cannot be thus expected to perform at optimum efficiency. There will be aging, premature failures, and unfortunately you find maybe by the time you reach 50 or 60 years, some or the other organ start failing because of fatigue and all this thing, which we have caused knowingly or unknowingly. We'll see to that. The working of digestion process. Do we know when it starts? When it starts? Even before we put food in our mouth. Oh, it begins when we smell something irresistible. When we see a favorite food, we know will taste good. Or when we think something about tasty होता ना दिमाग में. मैं आपको अभी कोई समोसे के बारे में बोलूँ, समोसा तो दिमाग में समोसा और ट्रिगर हो जाएगा, तो उसके ऊपर आपके जो एंजाइम्स हैं वो वर्क करना शुरू कर देंगे. तो ये नहीं है कि खाना पेट में गया तब स्मेल आएगी आपको समोसे की तो एंजाइम ट्रिगर हो जाएंगे. So this is something for understanding. So the things we eat, such as bread, meat, vegetable, they are not in a form. हम जो भी खाते हैं, उसको कन्वर्ट होना पड़ता है इन सर्टन सुटेबल फॉर्म, जो ब्लड में जाके फर्दर हमें एनर्जी देगा. लाइक कार्बोहाइड्रेट स्टार्च में कन्वर्ट होता है, स्टार्च जाके आगे जाती है सिस्टम में.
आपका जो प्रोटीन है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है, आपका फैट है और फैटी एसिड में, तो उसमें आपका कंट्रोल नहीं है। आपने तो फैट डाला या कार्बोहाइड्रेट डाला या प्रोटीन डाला, तो उसके बाद तो आपका प्रोसेस जो चलेगा वो उसको इनमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। वो कन्वर्ट नहीं होगा तो आगे सिस्टम में नहीं जाएगा और प्रॉब्लम करेगा। देखेंगे कैसे। डाइजेशन में होता क्या है, मेनली इसमें मिक्सिंग है। खाना खाते हैं, जैसे कुकर में भी हम खाना बनाते हैं, मिक्स करते हैं, इस तरह से इस ऑटो में है, ये सब ऑटो में, आपके कंट्रोल में नहीं है। मिक्सिंग होता है, उसका मूवमेंट होता है, वेरियस जो ऑर्गन्स हैं, सिस्टम है, इसमें आते हैं। आई सी टेल यू। देन केमिकल ब्रेकडाउन, ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, केमिकल ब्रेकडाउन। इसको हम आगे सब डिटेल में समझेंगे। And the chemical process varies for different kind of foods. ये important चीज है जिसको इससे ऊपर फोकस ज्यादा रहेगा। केमिकल प्रोसेस वेरी, केमिकल प्रोसेस मीन ये सारे एंजाइम्स निकलते हैं और ये सब चीजें कौन सा सिस्टम से, कौन से ऑर्गन से क्या एंजाइम निकलते हैं, वो क्या करते हैं, वो सब ऑटो में है। एंड वो उसमें कुछ हमारे कंट्रोल में है, इट वेरीज। These different inputs going into the system require different handling because the recipe for proper digestion, the process condition, even the organs involved with each input is different. ये समझने की बात है, don't just skip read it. Different input mean आप कुकर में खाना बनाते हैं, कभी चावल बनाते हैं, मीट बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, क्या उस सबका आपका सेम ही रहता है प्रोसेस कंडीशन, एक ही इतना की हैंडलिंग होती है? नो, किसी का टाइम ज्यादा होता है, किसी में आपको एडिटिव डिफरेंट डालने होते हैं, लेकिन हम तो अपने सिस्टम में सभी चीजें डाल देते हैं। उससे बाद बोलते हैं कि मेरा सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट वर्क करना चाहिए और ऑप्टिमम एफिशिएंसी पे और कंसिस्टेंट आउटपुट। ऐसा नहीं है। So what we know, eat normally is called carbohydrate, protein, sugar, and fat. These are the broad category. So digestion takes place where mouth. Unfortunately, बहुत लोग इस चीज को इग्नोर करते हैं कि माउथ में हम सिर्फ खाना चबाने के लिए नहीं है, इट इज द फर्स्ट स्टेप इन आवर डाइजेशन प्रोसेस। और अगर अकॉर्डिंगली देन इन द स्टमक एंड फाइनली इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर आपने माउथ में डाइजेशन आपका प्रॉपर नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन, आपके कंट्रोल में नहीं है। खाने को तो डाइजेस्ट होना ही है, कन्वर्ट होना ही है, तो लोड कहाँ पड़ेगा? कुछ का स्टमक में पड़ेगा, कुछ का छोटी आंत पे पड़ेगा। इसके अंदर वन में वंडर कि बड़ी आंत कहाँ चलेगी? लार्ज इंटेस्टाइन। एनीबॉडी कोई इसके ऊपर कोई कह सकता है अपना माइक ऑन करके, अगर किसी को कुछ आइडिया हो कि व्हाट हैपेंस टू आवर लार्ज इंटेस्टाइन? को मेडिकल बैकग्राउंड वाले को जरूरत नहीं है, उसको तो मालूम होगा ही। हम कॉमन आदमी की बात कर रहे हैं। when we have said that our understanding of the system is fair enough, do we know कि लार्ज इंटेस्टाइन भी तो होती है, वो क्या करती है? सर उसको ओवरवर्क करना पड़ता है, हार्ड वर्क एंड ओवरवर्क। जितना काम उससे काफी ज्यादा काम करना पड़ता है। ओके, यू विल सी टू इट। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे डाइजेशन में काम नहीं करती है। विल सी। कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा समझने क्या है, आई विल सी टू इट, जस्ट गिव मी सम टाइम, आई कम टू दैट, आई एम नॉट डिस्प्यूटिंग यू। Examples are bread, potato, rice, fruits, vegetable. So many of these food contain starch which can be digested and fiber which the body cannot digest. लेकिन हम अक्सर बात करते हैं सभी लोग कि भैया फाइबर चाहिए, लेकिन यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि फाइबर बॉडी डाइजेस्ट नहीं करती है। थोड़ा सा मैंने आपको सबको बोला था कि आपने नोटबुक लेके रखें, आपको ऐसी बहुत सी चीजें मिलेंगी, आपको लगेगा कि भी ये चीज तो कुछ डिफरेंट है, और इसके अंदर कुछ भी चीज तो मेरी इन्वेंट की हुई नहीं है, सब चीजें मेडिकल साइंस है, वन कैन एक्सप्लोर। सो डाइजेस्टिबल कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन स्मॉलर मॉलिक्यूल्स सलाइवा से, देन इन द जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय पैनक्रिया इन द लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सो मैं कार्बोहाइड्रेट को कहाँ कह रहा हूँ? छोटी आंत में और सलाइवा जो माउथ में है। कार्बोहाइड्रेट स्टमक के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता। We'll see to it.
Starch is digested in 2 steps. First in the enzyme of saliva, then pancreas से जो जूस निकलता है डिफरेंट फॉर्म में मेल्टोस. इतने टेक्निकल में जाने की जरूरत नहीं है. टेबल शुगर भी आपका ऐसे कार्बोहाइड्रेट है. इसका भी एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है उसको टेबल शुगर को, जो भी चीज हम खाएंगे जैसे मैंने पहले बोला उसको कन्वर्ट होना है. और कौन सी चीज कहाँ कन्वर्ट होती है, कैसे कन्वर्ट होती है, उसमें क्या प्रोसेस है, अगर हमें जानकारी हो तो हम पहले कंट्रोल कर सकते हैं, बाद में नहीं. प्रोटीन क्या है आपका, मीट, एग, बीन्स, इसमें लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम में कन्वर्ट होना पड़ता है बिफोर दे कैन गो इनटू द सिस्टम. फर्दर डाइजेशन इज कंप्लीटेड. तो ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है एंजाइम इन द जूस ऑफ स्टमक. तो प्रोटीन का मैंने यहाँ पे माउथ के अंदर नहीं लिखा. सो प्रोटीन का डाइजेशन माउथ पे नहीं होता. कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से शुरू होता है, देन छोटी आंत में. प्रोटीन का डाइजेशन माउथ पे नहीं है, स्टमक में है और छोटी आंत में है. तो यू वांट में से कभी प्रोटीन को मैं अगर बिना चबाए खा लूं, नो, उसके अंदर और भी चीजें हैं. देन उसमें कैसे होता है, क्योंकि हमारा सारा सिस्टम तो क्लोज लूप की तरह है, लेकिन उसमें जो ऑस्मोसिस प्रोसेस जो थ्रू इंटेस्टाइन में उसके जो वॉल्स हैं उसमें से वो पास करके सेल्स में जाता है. विटामिन, जो भी विटामिन लिए हैं वो भी ऑब्जॉर्ब होते हैं छोटी आंत में. वाटर एंड साल्ट, ये भी हमारे खाने से आता है. सो हमारे जो जूसेस हैं जो जनरेट होते हैं उसमें. So a gallon of water containing over an ounce of salt is absorbed from intestine every 24 hours. What is fat? Fat, ये हमें चाहिए है एनर्जी के लिए. तो ये फैट को फैटी एसिड में होना है. तो इसमें बाइल एसिड जो लीवर से प्रोड्यूस होता है, तो वो एक नेचुरल डिटर्जेंट की तरह, जैसे वो आपका फ्राइंग पैन है ना, फ्राइंग पैन में वो ग्रीस लग जाता है तो उसके बाद एक डिटर्जेंट लगा के उसको साफ किया जाता है टू रिमूव दैट फैट. तो सिमिलरली ये बाइल जो एसिड है उस तरह का कुछ काम करता है. देन टेस्ट टू द सेम थिंग टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. देन ब्लड कोलेस्ट्रॉल अगर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है तो इट लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस, बिल्डअप ऑफ फैटी डिपॉजिट विच इन टर्न causes पुअर ब्लड फ्लो, और उसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक लीड करता है. I'll just show you a small video. ये सब रियल वीडियोस हैं और इस तरह की चीजें एक नहीं आपको हजारों मिलेंगी सिस्टम के अंदर, नेटवर्क के अंदर. तो आप ये सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, जस्ट बताने के लिए अपनी बात को कि मैं क्या कह रहा हूँ और उसके अंदर साइंटिफिक फैक्ट्स क्या है. वो जस्ट वॉच वीडियो, ध्यान उसके ऊपर पे अटेंशन. तो उसके अंदर आप देखेंगे heart attacks, certain cancers, osteoporosis, diabetes. The major diseases of our society may be caused in part by what we eat. One of the physicians who helped me to understand why is you listen, he said the major diseases are caused by what we eat. Dr. Michael Clapper. I first woke up, so to speak, when I was working on the anesthesia service, learning how to put people to sleep. And I was seeing my patients for the next day's surgery for coronary artery bypass surgery in order to bypass clogged arteries in their heart. Because it was late at night, I drew the man's blood test, and when I took the blood to the laboratory and had it processed, I couldn't believe my eyes. Now, normally, this liquid layer floating on top of the blood clot is quite transparent. It's a yellow, but quite clear. You can see right through it. The blood in this patient's tube, however, was anything but clear. The serum floating on his clot was thick and greasy. In case कोई किसी को अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो मैं जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि इनका ये सर्जन है जिनको आप देख के आप हो सकता है जेलस फील कर रहे होंगे, यार क्या हेल्दी है आदमी, लेकिन इनके बाईपास है सुबह और इनका ब्लड लिया जा रहा है. और ब्लड में नॉर्मली देखिए जो क्लियर होना चाहिए इसके ऊपर
वो कितना ग्रीजी है, लेकिन क्यों है ये समझने की बात है। White. It looked like glue. In fact, it stuck to the sides of the blood tube when I shook the tube. I went back to the patient. I said, Mr. Phillips, did you eat before you came to the hospital tonight? He said, yes. I said, what did you have? He said, I had a cheeseburger and a milkshake. And when he said that, I realized that what I was looking इनका ऑपरेशन है, बोला कि भैया आने से पहले क्या खाया था, चीज़बर्गर मिल्कशेक। at in his tube was all the fat in the beef burger, all the butter fat in the cheese, and the butter fat in the ice cream and in the milkshake. And all this fat had oozed out into his blood and actually turned his blood fatty. The next morning, we took Mr. Phillips to the operating room, and I put him to sleep, and the surgeon opened up his chest. And from these arteries, he began pulling out yellow, greasy deposits of fatty material called atherosclerosis. This is a beautiful example of what atherosclerosis looks like. There it is. And I'm going to just gently tug on this now. I love it. It's a little hard to pull. Dr. Kupot, if you could give a little pull too. We'll see if we can get this thing out. We are just holding our breath so that you will finish the case. There it is. America's #1 killer right there before your eyes. बहुत लोग सोच रहे होंगे कि उसकी किस्मत खराब थी, ऐसा हो गया, लेकिन इट्स ऑल अबाउट लाइफस्टाइल। अगर हमारा लाइफस्टाइल भी यही है, बर्गर, मिल्क शेक एंड ऑल दिस थिंग, तो ये डिपॉजिट हमारे अंदर दिख आपको मालूम नहीं है, लेकिन मान के चलें, जैसे वो कहते नहीं है कि भैया सिगरेट पीते हैं, कोई कह सकता है कि मैं तो सारी उम्र से पी रहा हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, कैंसर नहीं हुआ, लेकिन कॉमन सेंस कहती है कि डैमेज तो हो रहा है, दिख नहीं रहा, लेकिन क्या हमें उसकी वेट करनी चाहिए कि भैया डैमेज हो तभी हम एक्ट करें? एक कॉमन सेंस की बात है, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर समझने की चीज नहीं है। तो एक लाइव एग्जांपल, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लें। इज अराउंड 9 मीटर लॉन्ग एंड द प्रोसेस कैन टेक 24 hours to 72 hours. It can take 18 hours also. Any guess कि ये कौन महारथी है जिनका प्रोसेस टाइम 72 hours होता है? क्या कभी आपने जिन लोगों ने कहा था कि हाँ हमको ज्ञान है, we know our digestion system, did they know कि इनका प्रोसेस टाइम 72 hours भी हो सकता है? हम तो सोचते चल रहे होंगे कि सुबह खाना खाया, नेक्स्ट डे जो क्लियर कर देते हैं, तुम्हारा वही है, लेकिन नहीं, आप फास्ट रखिए, आप दिन भर कुछ ना खाइए, बट यू विल फाइंड योर यूरिन भी हो रहा होगा, स्टूल भी पास हो रहा होगा। इसको थोड़ा समय ना, अगर हम इसको स्किप कर दिए तो कहीं ये हमारे प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। ऐसा क्यों होता है? विल सी। एसोफेगस ये ऑर्गन है हमारा, मुंह से फूड पाइप जो है, इसको फूड पाइप कहते हैं, जो नीचे लेके सीधा स्टमक तक जाती है, तो ये 25 से 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। लेकिन बहुत बढ़िया ईश्वर ने इसका डिजाइन किया है कि इसको आदमी उल्टा भी, जैसे स्पेस के अंदर यहाँ ग्रेविटी नहीं है, हम ये नहीं समझे कि मुंह के अंदर डाला और ग्रेविटी से नीचे आ रहा है, उसके अंदर देयर आर सर्टेन थिंग्स टेकिंग प्लेस। कैसे होता है? तो एक लाइव वीडियो है, मे बी एक्सरे के थ्रू कैप्चर किया गया है कि मूवमेंट। After you've chewed it, you push food to the back of your mouth with your tongue. That's a conscious act using voluntary muscles. The rest of the process is automatic. The epiglottis closes off your trachea, the tube to your lungs. This stops food from going down the trachea. Instead, it moves down the esophagus toward your stomach. 2 layers of muscles surround the esophagus. When you swallow, they squeeze food downward toward your stomach.
This steady contraction and relaxation is called peristalsis. It occurs throughout your digestive system. Soon the food reaches your stomach. So far, very little of the digestive process has taken place, but now much more begins to happen. Like the esophagus, your stomach is wrapped in layers of muscles, but there are 3 layers of muscle instead of 2. They also contract in a peristaltic rhythm. The 3 layers contract in waves. This mixes the food with liquids that your stomach produces. These are gastric juices, secreted by microscopic glands that line the inner wall of your stomach. Stomach glands secrete 2 digestive substances. Cells called chief cells secrete an inactive enzyme, pepsinogen. Hydrochloric acid is secreted by parietal cells. The acid converts pepsinogen into pepsin, an active enzyme. Pepsin breaks down complex protein molecules into simpler chemical parts. But very little happens here to carbohydrates or fats. Their break. Okay. Another important thing over here, heartburn. कहते हैं हम लोग कि भैया एक जलन सी होती है, खाना खाने के बाद कुछ जलन होती है, किसी को कभी कभी होती है, कई लोगों को फ्रीक्वेंट भी होती है, और हम इसको मान के चलते हैं एसिडिटी है। ये थोड़ा समझने की बात है कि हो सकता है इट इज द लैक ऑफ एसिडिटी, नॉट बिकॉज ऑफ मोर एसिडिटी, क्योंकि इसका जो सिस्टम है, जो एसोफेगस है, ये फूड पाइप है, नीचे स्टमक के साथ जाके एंड में एक तरह का नॉन रिटर्न वॉल्व सा होता है, ताकि फूड स्टमक से वापस नहीं आए आपके इसोफेगस में। सो ताकि आपके सिस्टम फूड वापस नहीं आए, उसके बीच में एक वॉल सा होता है। लेकिन पेट के अंदर अगर आपका प्रॉपर एंजाइम्स नहीं निकल रहे, सफिशिएंट एसिडिटी नहीं है पेट के अंदर, डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा, ये वॉल एक तरह का खुल जाता है। जैसे कि प्रेशर बढ़ गया कुकर के अंदर, उसके बाद आपका विसल बढ़ जाता है। एक क्रूड एग्जांपल है, समथिंग लाइक दैट, इट ओपन्स आउट और वो फूड वापस फिर ऊपर आता है। उसको ऊपर जब आता है तो फूड पाइप के अंदर एसोफेगस में वहां कोई लाइनिंग नहीं है, प्रोटेक्टिव लेयर, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द मूवमेंट ऑफ फूड डाउन द लाइन। तो वहां पे जब वो फूड वापस आएगा तो वहां पे आप मान के चलिए पेट के अंदर एसिडिक मीडिया है, वेरी हाई एसिडिक मीडिया है, तो फूड जब वापस आएगा एसोफेगस के अंदर उसको इरिटेट करेगा, एंड देन दिस इज द रीजन जो हमें कैंसर होता है या वहां समस्या होती है। सो इट इज इम्पोर्टेंट कि हमें वहां पे इस चीज को केयर करें कि हमारे डाइजेशन, तो इट इज नॉट बिकॉज ऑफ एसिडिटी, इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसिडिटी। तो जो मैंने बोला था ना कि केमिकल एडिटिव, हम जब दाल खाते हैं तो नींबू डाल लेते हैं ना, वो प्रोटीन है, प्रोटीन को एसिडिक मीडिया चाहिए, वो नींबू क्या चीज है, वो यही है, वही केमिकल एंड एडिटिव है टू सपोर्ट। अगर मान लो किसी के सिस्टम में एंजाइम सफिशिएंट नहीं है, देन स्टमक इट हैज 3 थिंग्स टू टेक केयर, कि उसमें स्वेलो करते हैं, स्टोर होता है, जो हमने स्वेलो किया स्टोर होता है। Second job is to mix the food, liquid and digestive juice produced by the stomach. Third task is to empty the stomach slowly. Slowly word है, मतलब कि ये नहीं है जो अभी आपने वो खाना खाया तो पेट के अंदर गया, उसके बाद घंटे बाद 2 घंटे बाद वो पूरे का पूरा आगे मूव कर देगा। No, I will show you it again through the video. It moves further to the small intestine slowly. पहले थोड़ा स्टमक के बारे में देख लें। In the digestive system, the mechanical action of teeth grinds food down into smaller particles, and the chemical and wetting action of saliva begins the breakdown of starches into more digestible sugars. The food is pushed through the esophagus into the stomach, where gastric acids and muscular churning continue the chemical and mechanical digestion of proteins in the food. In the duodenum, food continues to be digested by the action of other pancreatic and bile secretions.
The digested food is absorbed by the body as it passes through the small intestine and moves through the large intestine and rectum. Okay. Digestive secretion get decreased by large meal. जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है सीक्रेशन, लेकिन ये जानकारी चाहिए, जरूरी है कि हमारे सीक्रेशंस अफेक्ट कैसे होते हैं. अफेक्ट होते हैं बाय द लार्ज मील. आपने ओवर ईटिंग कर लिया, लार्ज अमाउंट ऑफ फैट, पुअर च्यूइंग. बहुत लोगों को आदत है, वो सोचते हैं कि चबाने की क्या जरूरत होती है, और वो पहला स्टेप है. आपका वो स्टेप नहीं अगर कंप्लीट हुआ तो आगे लोड पड़ेगा ना स्टमक के ऊपर, उसके ऊपर इंटेस्टाइन के ऊपर. सो पुअर अपीयरेंस ऑफ फूड, हम सोचते हैं कि मन नहीं है, खाना अच्छा नहीं लग रहा देख के, या उसके ऊपर हमारे कुछ भी है. और नेगेटिव इमोशन, आप स्ट्रेस में हैं, किसी वजह से आपको गुस्से में है, कुछ है, तो आपके एंजाइम का जो सीक्रेशंस है वो अफेक्ट हो जाता है. Several factors affect emptying of the stomach. ये तो हुआ कि अभी secretions कैसे affect होता है, then emptying also. तो कौन से फैक्टर्स हैं? नेचर ऑफ फूड, मेनली फैट एंड प्रोटीन, क्या खाया है उसके ऊपर डिपेंड करता है. इसके ऊपर हम आगे समझेंगे. और इनके जो कंट्रैक्शन रेट है, इट इज 3 per minute, and this can take up to 5 hours for 2 pounds of food to leave the stomach. Please note it again. खाना जो है हमारा 2 पाउंड फूड अगर है, 5 घंटे लगेंगे, क्योंकि आई सेड स्लोली टू लीव द स्टमक, धीरे धीरे. कैसे? वी कैन सी थ्रू द लाइव वीडियो, थ्रू द कैमरा इनसाइड, हाउ द एम्पटिंग इज टेकिंग प्लेस. Here's the stomach, higher in the body than many people think. It's a large sac with strong muscles in its walls. It has a distinctive part to play in the digestive process. Its first function is a physical one. It holds food for 2 to 4 hours, while the muscles churn it up and break it down. The movement that you see here is continuous. The stomach is contracting the whole time. If you actually put a scope into the stomach, you can see these waves of contraction sweeping down, churning it up, generally forcing it onwards towards the upper part of the small bowel, which is called the duodenum. When we examine the lining of the stomach wall, here we're looking back past the endoscope to the stomach entrance, we find that it produces gastric juices. These contain an enzyme called pepsin, and the acid which that enzyme needs to start the breakdown of protein. The acid in the stomach activates pepsinogen, which is an enzyme, into pepsin, which starts protein digestion. And also the acid's got a very important defense mechanism, because there are germs all around the nose and the throat, and germs on a lot of the things we eat and have contact with. The acid in the stomach is acid enough to kill the germs. And it does actually kill them, because there are really no germs in the middle part of the bowel. The mixture of food and gastric juices, which is called chyme, must be moved to the intestines for the next stage of digestion. This is done via a ring of muscles, the pyloric sphincter, which squirts about 12 grams at a time into the upper part of the small intestine, the duodenum. The X-ray clearly shows the folds and ridges on the inside wall of the intestine, and these play an important part in the next stage of the digestive process. Movement of the stomach is involuntary. It's triggered partly by the presence of food, but also by signals from the nervous system. The sight, the smell, or even the thought of food is enough to excite us. आपने सुना होगा, जस्ट रिपीट कर दूं कि कैसे उसके अंदर जो लाइव वीडियो आपको दिखा है, एक्सरे के थ्रू हमारा अंदर डाइजेशन हो कैसे रहा है और किस रेट पे एम्प्टी हो रहा है. और 12 ग्राम ही सेट, and it is even it said 2 to 4 hours it takes, लेकिन 2 hours क्या है, 4 hours क्या है, उसकी जानकारी भी थोड़ा होना चाहिए. और उसने वहां पे बताया कि कैसे स्मेल से ही आपका डाइजेशन प्रोसेस ऑन हो जाता है. स्मॉल इंटेस्टाइन,
स्मॉल इंटेस्टाइन, I mean इसका सरफेस एरिया 250 स्क्वायर मीटर के आसपास होता है, जस्ट लाइक ए टेनिस कोर्ट। तो इस फ्लैट नहीं होता, उसमें फोल्ड्स होते हैं सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, और उसके अंदर बेफर्स भी हैं ताकि प्रॉपर मिक्सिंग हो। इसका एवरेज डायमेंशन 8 इंच डायमीटर है और 21 फीट के आसपास इसकी लंबाई है। एंड नॉर्मल पर्सन जो है वो 8 से 2 लीटर डाइटरी फ्लूइड लेता है एवरी डे, प्लस 6 to 7 लीटर फ्लूइड व्हिच इज रिसीव्ड बाय secretions, salivary gland, stomach, जो पैनक्रियास, स्टमक से, लीवर से, सभी जगह से आते हैं वहां से। तो but by the time this ingestion enter the large intestine, 80% of this food has been absorbed into intercellular space by osmosis process across cell membrane. Large intestine is largely bacteria, 100 trillion bacteria approximately, and 40% of the fecal mass is bacteria only. Around 50,000 miles of both good and bad bacteria. यहाँ समझना जरूरी है कि हमारे large intestine में good enzymes भी हैं, bad enzymes भी हैं, and we require good enzyme, bacteria. अब गुड बैक्टीरिया नहीं होता, मैनी पीपल ये हो सकता है कि थोड़ा सा उनको लगे कि ये क्या चीज है। बाहर मार्केट में कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, कहीं के मान लो कुछ हेल्थ इशू होता है एंड उनके अगर गुड बैक्टीरिया नहीं है तो वो कैप्सूल अवेलेबल होते हैं, यहाँ पे इज अ फीकल मास ओनली, स्टूल उसके अंदर होता है। तो आपके वो गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने के लिए, इट मे साउंड ऑड, but this is how it is, just to impress upon the importance of our good bacteria. But whether we can do something on that to improve the health of good bacteria, we'll see. इसको भी एक बार देख लें कि लार्ज इंटेस्टाइन दिखती कैसे है। The final stage of digestion takes place in the large intestine or colon, which is a meter long and acts as a fermentation vessel. Some substances, such as dietary fiber, still need to be processed. So over a period of about 16 hours, the food residues are passed through, again by means of peristalsis. During this time, bacteria ferment the material, producing a variety of products and some gas. The products of the fermentation, along with water, are absorbed, leaving the waste to be eliminated through the anus. आपने सुना 16 घंटे के बाद यहाँ पे जब फूड आपका आया तो यहाँ पे फर्दर वाटर जो है ऑब्जॉर्व होता है, और उसमें फाइबर भी आपने सुना होगा, उसने बोला कि फाइबर यहाँ पे हेल्प करता है, हैंडल होता है। कैसे? क्योंकि फाइबर इज ए फूड फॉर बैक्टीरिया। जो मैंने पहले भी बताया था कि फाइबर डाइजेस्ट नहीं होता, लेकिन हम सब कहते हैं कि फाइबर चाहिए, सब्जियों में चाहिए, फलों में चाहिए, फाइबर होना चाहिए, लेकिन फाइबर तो मैं कह रहा हूँ डाइजेस्ट नहीं होता। और ये भी मैंने बताया था कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, वहां पे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की हेल्थ इंप्रूव करने के लिए फाइबर चाहिए। So fiber is a food for bacteria. Liver is another organ which produce bile juice. ये bile juice दो खाने के बीच में जो होता है, क्रिएट होता है, वहाँ स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज है समझने के लिए। हमने लंच लिया, बाइल जूस जो प्रोड्यूस हुआ आगे छोटी आंत में गया, उसके बाद आगे के दूसरे खाने के बीच में वो लीवर बाइल जूस क्रिएट करता रहता है, जो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, कॉन्सेंट्रेट होता रहता है। वो हमें कॉन्सेंट्रेट चाहिए, लेकिन अब आप खुद समझ सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमने 2 घंटे बाद फिर खाया तो सिस्टम डजंट अंडरस्टैंड। जो मैंने शुरू में बताया था, ये प्रोसेस आपके हाथ में नहीं है, ये प्रोसेस ऑन हो गया। सिस्टम ऑटोमेटिकली थ्रू द नर्व्स सेंस करता है कि ओके समथिंग हैज कम, तो सिग्नल लीवर को जाएगा, ओके फूड हैज कम, गेट रेडी, एंड सिस्टम डजंट नो
कि you are going to eat just a small one biscuit or you are going to eat the full food. System doesn't know. आपने सिस्टम को ट्रिगर कर दिया तो लीवर ने फिर बाइल जूस बनाना शुरू कर दिया। तो आगे जाके लाइफ के किसी स्टेज में जब लीवर का प्रॉब्लम होता है, वी आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज आवर लीवर इज ओवरवर्क्ड बिकॉज ऑफ अस। हमने उससे बार बार उसके ऊपर काम किया है। इट इज जस्ट लाइक मिल्किंग द काउ। काउ को मिल्क करना आपको मालूम है कि भैया सुबह आपने दूध निकाला, शाम को निकाला, आप बोलोगे नहीं अभी मैं इतना नहीं है, 2 घंटे बाद फिर थोड़ा सा निकालूंगा। यू विल किल द काउ। And this is same way we are killing ourselves if we are not taking care of how to eat. Okay, so bile juice करता क्या है, पहले भी हम समझ चुके हैं। It dissolves the fat like detergent that dissolves grease from frying pan. लगभग 75% ब्लड जो एंटर करता है लीवर में वीनस ब्लड होता है। तो सबसे पहला झटका आपका इसमें लीवर पे ही आता है। तो उसमें ब्लड ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं। पैनक्रिया ये एंजाइम क्रिएट करता है डाइजेस्ट प्रोटीन को करने के लिए और न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। अब इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों न्यूट्रलाइज? क्योंकि स्टमक के अंदर एसिडिटी बहुत हाई है। हाई बोले पीएच वैल्यू बोले तो लो, मीन पीएच वैल्यू 1 to 2, इतना हाई एसिडिटी है। और वो फूड आगे छोटी आंत में गया, छोटी आंत के अंदर वो अलाइनिंग नहीं है उसको एसिडिटी को हैंडल करने के लिए, तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। हाउ ब्यूटीफुल, डोंट वी सी हाउ ब्यूटीफुल गॉड हैज डिजाइन्ड द सिस्टम। और ये सब में बड़ा एक बहुत, अभी भी मैं कहूंगा बहुत ऊपर से मैं टच कर रहा हूँ। आप इसके डिटेल में जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे सिस्टम डिजाइन किया हुआ है ईश्वर ने। तो न्यूट्रलाइज होता है। आप यहीं पे अगर हम आपको ईश्वर की बात कर रहे हैं, स्टमक के अंदर हम मीट खाते हैं, डाइजेस्ट हो जाता है मीट, लेकिन स्टमक किस चीज का बना है? वो भी तो मीट का बना हुआ है। तो व्हाई द स्टमक doesn't digest the stomach itself, the lining itself? This isn't it beautiful? Same way for the saliva जो माउथ के अंदर है, वो माउथ को भी खा सकता है। It's a beautiful thing. अगर उस डेप्थ में जाएंगे तो बहुत कुछ है। Food in the small intestine inhibits gastric gland in the stomach and it inhibits the mixing and churning movement. This slows the rate. ये important है समझने के लिए मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। Read it again please. कि छोटी आंत में अगर खाना है, ड्यूड्रम आपका जो है वो छोटी आंत का ही पार्ट है, उसमें खाना है तो रेट ऑफ एम्प्टिंग स्टमक की स्लो हो जाती है। गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें सिक्रेशंस कम हो जाती है एंड मिक्सिंग भी कम हो जाती है। मींस is so beautiful design कि regulation of passage of food from stomach to small intestine is so that the small intestine have time. अब पूरा उसके ऊपर छोटी आंत में खाना है, उसको डाइजेस्ट होना है, टाइमली प्रॉपर उसको समय चाहिए। इस तरह से वो सिस्टम डिजाइंड है कि आपके स्टमक से स्लो रेट के ऊपर ही आएगा और ये ऑटो में होता है। इसका मतलब लेट अस से, इसको मैं थोड़ा सा स्पेंड कर रहा हूँ, लेट अस से कि भैया 2 घंटे के बाद या 3 घंटे के बाद आपका स्टमक खाली हो गया। वेरी गुड, यू में से क्या भी स्टमक खाली हो गया, पेट खाली है तो मैं इसके अंदर और डाल दूं? नो, यहाँ पे ये चीज कही आ रही है और ये सब फैक्ट्स हैं, ये कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है, ये सब चीजें साइंस की हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ ये कहा जा रहा है कि छोटी आंत में अगर खाना है तो वो आपके स्टमक के अंदर जो सिक्रेशंस है और उसके जो मिक्सिंग है उसको इंपेयर करता है, स्लो कर देता है, क्योंकि सिस्टम डिजाइंड है इसी तरह से। छोटी आंत को भी हैंडल करना है फूड को, लेकिन इसका मतलब आप ये नहीं है, इससे ये क्लियर हुआ कि 2 घंटे के बाद आप खाना खाएंगे, कोई छोटी सी चीज है ठीक है, लेकिन आपने हैवी लिया तो आप मान के चलें कि स्टमक ऐसी तैसी हो रही है, वहां पे सिक्रेशन नहीं हो रही है, वहां पे चर्निंग स्लो है उस चीज की, क्योंकि खाना अभी छोटी आंत में पड़ा हुआ है।
So it means till the food has moved further, not just from stomach, but from small intestine also. It is not advisable to put anything bad again into the stomach. और ये थोड़ा सा परेशानी करने वाली चीजें भी यहाँ पे आपको मिलेंगी, क्योंकि हम कुछ मान के चल लेते, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा था, तो यहाँ पे हम कुछ और चीज कह रहे हैं. एंड आई एम रिपीटेडली सेइंग, ये कुछ हाइपोथेटिकल नहीं है, ऑल साइंस वेरीफाइड योरसेल्फ. गैस्ट्रिक एम्प्टिंग इज फास्टेस्ट. जो रेट ऑफ एम्प्टिंग मैं कह रहा था कि स्टमक खाली का उसका रेट क्या है, और डिफरेंट प्रोसेस मैंने बताया था ना, डिफरेंट आपके इनपुट्स हैं, तो डिफरेंट उसके कंडीशंस होंगी. और सबसे फास्ट खाना आपका स्टमक से आगे मूव करेगा कार्बोहाइड्रेट में, उसके बाद प्रोटीन में, और सबसे स्लो फैट में. सो कॉशन, जो बहुत फैट में क्या आपका ये सब चीजें जो आ जाती हैं, तो उसमें मान के चलिए कि आपका खाना पेट में बहुत घंटे लगेगा, may take up to 5 hours. So within 5 minutes after fat enters the stomach, a hormone called androgesterone enter the bloodstream and travel to stomach. This hormone inhibits the motion of stomach and causes it to empty at a much rate. How beautiful God has designed the system. आप क्या खा रहे हैं उसने दिया, और उसी को कैसे. अब ये चैप्टर भी एक इम्पॉर्टेंट है पीएच का आपका. अभी मैं सारा इंट्रोडक्शन पे है, क्योंकि इसी का डेरिवेटिव होगा आगे जब मैं नेक्स्ट कवर करूंगा चैप्टर को, आज या कल भी, कि क्या खाना कैसे खाना. अगर आपने ये समझा होगा तो मुझे दिक्कत नहीं होगी आपको कहने में, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ यस ये चीज समझी हुई है. पीएच हमने बताया कि ये एसिडिटी का पैरामीटर है, कि हमारा 7 पीएच को न्यूट्रल बोलते हैं, लो है तो 1-2 है तो हाईली एसिडिक है, ऊपर है तो आपका एल्कलीन है. माउथ के अंदर पीएच 6.8 होती है, विच इज वीक एसिड. और बहुत से एंजाइम जो है, सारे एंजाइम जो है पीएच के सेंसिटिव होते हैं, और लो पीएच एनवायरनमेंट आपकी स्टमक में है. कॉन्सेंट्रेशन तो saliva is around 99% वाटर, और माउथ के अंदर पीएच अगर आपकी लो है. अब यहाँ पे डेरिवेटिव ये है कि आपने मुंह के अंदर जो आपने कुछ एसिडिक चीज डाली है जिसका पीएच लो है, चटनी है कुछ है, तो मुंह के अंदर डाइजेस्ट नहीं होनी है, क्योंकि वो लो पीएच, उसके ऊपर 6.8 पीएच है, आपने लो पीएच वाली चीज डाली है, मुंह के अंदर डाइजेस्ट नहीं होनी है. तो ये मान लीजिए स्टमक के अंदर पीएच बहुत लो होती है, 1 to 3. और एक एग्जांपल के लिए लाइम जूस का पीएच 2 होती है. तो ये यहाँ पे लो पीएच ब्रेक डाउन को, कार्बोहाइड्रेट को नहीं, तो स्टमक के अंदर कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि लो पीएच है. कार्बोहाइड्रेट लो पीएच पे नहीं है, वो आपका माउथ के अंदर 6.8 है. स्ट्रॉन्ग एसिड कंटेंट्स ऑफ स्टमक, ये हमने वीडियो में भी देखा, करता क्या है कि हमारे इम्यूनिटी को पैथोजेंस बहुत से जर्म मुंह में, नाक में और खाने में जो आते हैं, तो लो पीएच है तो उसको टेक केयर करता है, हैंडल करता है. छोटी आंत में हमने समझा है कि बाइल जूस जनरेट होता है, और उसको इट न्यूट्रलाइजेस द एसिडिक कंडीशन. ये मैंने बताया पैनक्रिया से जो आपको आया, और इसका जो पीएच है 8.5. स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स हैं, तो अगर स्टमक के अंदर आपको पैनक्रिया काम नहीं कर रही, तो आपका एसिड जो स्टमक से आया वो न्यूट्रलाइज नहीं हो रहा, तो आपका पीएच लो में है, तो वो आपको दिक्कत करेगा. तो मान के चलिए कि छोटी आंत में भी डाइजेशन नहीं हो रहा. नो दिस कंप्लीट्स द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिस्टम. तो बिफोर आई मूव टू द सेकंड टॉपिक, आई जस्ट लाइक स्मॉल फीडबैक. आप अपना यहाँ पे कुछ कहना चाहें, एम आई मेकिंग सेंस? तो मैं बिल्कुल ऐसे तो नहीं है कभी कुछ आउट ऑफ प्लेस या कुछ ऐसे बात कर रहा हूँ जो कुछ आपको लगे कभी इज नॉट मेकिंग सेंस या कुछ भी. प्लीज फील फ्री टू राइट, because this feedback it will be important for me to accordingly be motivated or modify myself to move further. Sir, it is really making sense and helping us. Very informative session, sir. Okay, then do you find it interesting, or
Are you confused or you find the same? I hope I am not confusing you. Okay. Then, do you think your learning has improved so far? जो कुछ भी बताया, जो हम कह रहे थे कि we already know. Do those people say that they already Yes, know? yes. Mr. Saint, what I would like to say, my intention was to say we feel that we know, but Yes. we exactly don't know exactly. And what we know, then we don't apply also. Two things were there. Correct. Okay. Correct. Yeah, And right. now, because of this your session, curiosity is increased to what to eat and what not to eat, right? And why? I think that we'll cover in next day. And why also? Why also? Why? That is also important. Okay. Okay. Sir, I sir, move- one thing. Yes, please. That's good. The process technically is made sufficient clear, but normally we find that we don't keep ourselves aware about those actions. We at no stage of our life we have been taught in that way. Very right. Very right. Yeah. The difficulty is that we are not conscious about such activities, such actions. What is happening? To cite one example, in a yoga, I learned something that you should keep yourself aware about the breathing, that you are inhaling and exhaling. But about the eating activity, so far nobody has taught us that way. So thank you for the feedback. I hope I'll be in a position to help in that. You rightly said that we unfortunately this subject nobody teaches us. Actually, Surendra Sahab, I am lucky that this link has been forwarded from Mr. Nanda from Allahabad. Okay. And he had been in ITI and he introduced your biodata to me. And presently I am at Ludhiana. So thanks a lot, boss. It's a very good action. God bless you. Yeah. Thank you. Okay. Now I'll be focusing on sicknesses associated with wrong style of feeding. One video we have already seen. Man can seemingly eat anything, right? और हर आदमी का अपना अपना सिद्धांत है कि राइट और रॉन्ग क्या है। मीन जैसे हम किसी को मीट खाता है तो उसके लिए उसका पूरा जस्टिफिकेशन दे देगा कि भैया मीट क्यों खाना चाहिए। कोई वीगन कह रहा है तो उसका जस्टिफिकेशन, कोई अगर वाइन लेता है तो उसका पूरा थ्योरी है कि भैया वाइन तो पीनी चाहिए, ये राइट होती है, उसमें ये होता है। कोई ड्रिंक करता है तो भैया 2 पैक तो डॉक्टर भी कहता है। कोई बियर पीता है, अरे भैया बियर शराब थोड़ा होती है। तो कहने का मतलब कि हर एक ने वो ट्रूथ का डेफिनेशन अपने और उसके हिसाब से उसको हजारों उसके कैटेगरी के लोग सपोर्ट में मिल जाते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन ट्रूथ का नहीं है। ट्रूथ हैज टू स्टैंड साइंटिफिकली, तो ये डेफिनेशन नहीं है। तो हम कुछ भी खा लें, अभी आप चाइना में या कुछ खा रहे होंगे तो उनकी डेफिनेशन में वो सही है, लेकिन हर आदमी का, चाहे वो चाइनीज है, इंडियन है या कोई भी है, चाहे वो साधु संत है या कुछ भी है, इट इज ए ह्यूमन बॉडी and every human body is designed same. No human body is designed different. क्या आप कहें कि भैया चाइनीज की बॉडी जो है वो किसी दूसरे तरह से ईश्वर ने डिजाइन की हुई है, क्या हम ऐसा समझ सकते हैं? नो, ऑल बॉडीज आर डिजाइन द सेम। तो वो डिजाइन क्या हम समझते हैं, हमारे बॉडी का डिजाइन क्या है, क्या चीज हैंडल कर सकता है, और हर चीज डिजाइंड है, हर चीज डिजाइंड है। और किसी चीज को क्या हम ले सकते हैं कैसे, लेकिन हम करते क्या है, क्योंकि ईश्वर को इंसान ने इनफाइनाइट पावर दी है, विल पावर, हम कुछ भी कर सकते हैं, एंड वी अब्यूज कुछ भी खाना। तो वी ईट एनीथिंग, दैट डजंट मीन दैट इट इज राइट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट। सो माय फोकस हियर इज टू मेक यू रियलाइज ऑन दैट पार्ट ओनली। सो हेल्दी बॉडी प्रोटेक्ट्स इटसेल्फ फ्रॉम हार्मफुल नॉट। ऑटो में है, हमारा सिस्टम इतना अच्छा है, ह्यूमन है, कि हम काफी हद तक गलत कुछ चीज हो जाती है एक्सीडेंटली, उसको टेक केयर करता है, लेकिन
आप बरसों तक आप सिस्टम की ऐसी तैसी करते रहें तो कॉस्ट तो चुकानी पड़ेगी एट सम स्टेज और अनदर। सीक्रेशंस जो हैं, ये मैंने पहले टच किया था, ये जानना जरूरी है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस में है और अनप्लेजेंट एनवायरनमेंट में है, पेन में है, फियर में है, डिप्रेशन में है, हमारे जूसेस जो हैं वो सुप्रेस हो जाते हैं अप टू 24 आवर्स। आप देखिए बुखार वगैरह में, फियर में हमको बोला जाता है कि खाना हैवी नहीं खाना, उसके और भी रीजन है, पर ये भी एक रीजन है क्योंकि हमारे सीक्रेशन सफिशिएंट नहीं है, वो तुम्हारा डाइजेशन नहीं सफिशिएंट होगा और हम खा रहे हैं एनर्जी के लिए। सपोजिंग है खाने में हमको 100 यूनिट एनर्जी मिलनी है लेकिन उसमें मेरा सिस्टम पहले ही वीक है, मेरे एनर्जी 100 यूनिट में तो एनर्जी बची नहीं है, आई एम वीक। या उसको खाने में 100 यूनिट एनर्जी लेने में 200 यूनिट तो मेरी एनर्जी लग गई है। सो देन उसके बाद क्या होगा, खाना खाते ही नींद आ जाएगी क्योंकि सिस्टम ऑटो में है। गॉड है डिजाइन ब्यूटीफुल, जैसे फ्यूज ब्लो हो जाता है ना टंडन जी, जैसे फ्यूज ब्लो हो जाता है तो आपका लोड बढ़ जाए तो फ्यूज ब्लो होता है, ऐसा ही वो ऑटो में सिस्टम ईश्वर ने बनाया हुआ है, फ्यूज विल ब्लो। तो ये अंडरस्टैंड करना है ये पॉइंट कि हमारे 24 घंटे था सीक्रेशन। तो जब आप खाना खाएं गुस्से में या टेंशन में है, इट्स बेटर नॉट टू ईट और अवॉइड इट, क्योंकि आप जो खा रहे हैं यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड, यू आर फर्दर डैमेजिंग योर सिस्टम। So not all foods undergo the same digestion process in the stomach and not all food leave. ये पहले भी हम देख चुके हैं कि हम डिफरेंट हम कुछ भी खाएं और सोचें कि स्टमक में वो सेम ही हैंडल कर रहेगा, स्टमक सेम तरीके से हैंडल नहीं कर सकता। जैसे कि आप कुकर में खाना बना रहे हैं, उसमें चावल है, दाल है, मीट है, क्या है, और हम सोचें भी सबका एक ही टाइम हो और एक जैसा ही हो, और हम सब अगर मिक्स करके डाल दें, चावल में मीट भी डाल दूं, पनीर भी डाल दूं और बोलें, जबकि सारे इंग्रेडिएंट डिफरेंट है, सारे इनपुट डिफरेंट है, और हम सोचें कि एंड में मेरी वो गोभी है वो तो बिल्कुल गोभी की तरह है, मीट की तरह है, चावल चावल की तरह है, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन हम करते क्या है, हम सब कुछ ऐसे ही डालते हैं और उसके बाद एक्सपेक्ट करते हैं ऑप्टिमम आउटपुट। ये देखिए हमको आइडिया नहीं होगा, हम सोचते हैं चलते फिरते 2 अंगूर मुंह में डाल लिए, कुछ नहीं होगा। अरे भाई देखिए कितना टाइम लगता है स्टमक के अंदर। लेमन 90 मिनट, ग्रेप 105, टोमेटो 120, कैरेट 135 मिनट, आमंड 150 मिनट, एप्पल 165 मिनट, बनाना 180 मिनट, पीनट 195, टर्निप 240। डिड वी नो दिस? हमने चलते फिरते सोचा खाना खाया, ये तो थोड़ी देर बाद चलो 2 अंगूर मुंह में डाल दिए। नो, वी हैव टू बी केयरफुल। सर गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सर आई हैव ए क्वेश्चन है, बहुत ही आप इंफॉर्मेटिव ये सारा चल रहा है वेबिनार, तो मेरा एक ये बड़ा नोट करिए आज बात मैंने, यू जस्ट सेड कि जो व्हेनेवर वी कंज्यूम मीट इट गेट्स डाइजेस्ट, तो हमारे जो स्टमक है वो भी मीट का ही है, तो वो जो एसिड है वो मीट को, वो हमारे स्टमक को क्यों नहीं डैमेज करता? ये तो इसका कोई आंसर ही नहीं है सर। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन में आएगा, इसको मैं कहीं हो सकता है टच करूं, वो कल कवर होगा, तो उसको ये कुछ चीजें कुछ मैं छोड़ भी रहा हूँ ना कि आपको फर्दर एक्सप्लोर करने के लिए। सर वो बड़ा डीप सब्जेक्ट है, उसी में सारी क्लास निकल जाएगी। सर आप तो सर वर्सेटाइल हो गए हैं सर, मैं तो बड़ा ही खुश हूँ। मैं मार्वल उसके बाद आपको बताने हल्का सा टच कर रहा हूँ कि भी हाउ ब्यूटीफुल द सिस्टम इज डिजाइन, और उसके पीछे की थ्योरी तो समझना छोड़ो। ओके, so since different food require different set of environment in the stomach to digest properly, it is reasonable to assume that if different foods are put into stomach at the same time, difficulty could occur. One में से यहाँ दिमाग में एजिटेशन चल रहा होगा बहुत लोगों में कि भैया ये क्या बात कर रहा है, सारी दुनिया ही ऐसे खा रही है, तो सारी दुनिया परेशान भी तो है, तो हम भी परेशान है। Then we say कि भैया ओके, आई एम आल्सो ओके। मैं तो डिजाइन की बात कर रहा हूं कि सिस्टम डिजाइन कैसे है, लेकिन हमारे पास विल पावर का मिसयूज करके हम कुछ भी खा रहे हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि हम सही कर रहे हैं। तो हम आइडियल क्या है, क्या डिजाइन है, मैं उसको बात कर रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो हमने समझा
उसको एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, चीज बर्गर बहुत अच्छा लगता है। मेरा ख्याल है शायद ही इस ग्रुप में कोई होगा जो कहे कि भी मुझे चीज बर्गर नहीं होता खाता हूँ, लेकिन थोड़ा समझ लेंगे चीज बर्गर में जितना अभी तक समझा उसको आपने रिलेट करना है। ए बाइट ऑफ चीज बर्गर इट में कंटेन ए स्टार्च, यस, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, टमाटो चटनी भी लगा के खाते हैं, यानी कि सभी चीजें सेम टाइम पे एक बाइट में जा रही हैं। और स्टमक ये होता है, क्या हालत होती है, स्टार्ची ब्रेड वाज प्रोबेबली नॉट च्यूड वेरी थॉरोली इन द माउथ, क्योंकि मीट भी है, सब कुछ है, तो मुंह में उतना हम नहीं स्टार्ट करते हैं, तो मुंह में इसका मतलब एक प्रोसेस आपका वीक हो गया। सो द ब्रेड रीचेज द स्टमक इन अनप्रिपेयर्ड स्टेज। द मीट विल रिक्वायर ए वेरी एसिड, जो मीट है मैंने आपको बताया तो प्रोटीन है, उसमें एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए, तो ब्रेड भी साथ में आई, इट मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर स्टार्च, जो ब्रेड में स्टार्च है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि मुंह में नहीं खाया, सिंस एसिड्स आर इनिमिकल टू स्टार्च डाइजेशन। वो फैट जो है उसमें न्यूट्रल एनवायरनमेंट चाहिए, देन द मीट उसमें टाइम भी ज्यादा चाहिए, तो फैट कंटेंट causes the stomach to slow। फैट गया है तो उसके अंदर सिस्टम ने ट्रिगर कर दिया कि फैट हैज कम, ओके स्लो डाउन, लेकिन बाकी चीजें जो चल रही हैं, सो एट द सेम टाइम द एसिड्स इन द टोमेटो इंटरफेयर विद द स्टार्च डाइजेशन ऑफ द ब्रेड। सो in a single bite there are 7 different type of food requiring 4 different set of enzyme and digestive condition, and all digest at the same rate. Outcome, so at best such a conglomeration of food in the stomach will slow the digestion process. The food simply become half digested and push sluggishly through the system, releasing the poison and gases. इसी को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट करूं। अब आपने ये समझिए कि हम 2 चीजें, अभी आपने जैसे कि हमने, कई लोग मान के चलते हैं कि भी बहुत हल्का सा खाना खाते हैं, भैया क्या खाते हो, भैया 2 हमने वो फ्रूट ले लिया, साथ में दूध ले लिया। अभी तक जो आपने समझा है, फ्रूट आपका कार्बोहाइड्रेट है और आपने साथ में दूध लिया है, प्रोटीन है, दोनों चीजें मिक्स होके गई हैं पेट में, और मिल्क जो है सिस्टम कह रहा है कि भैया रुको, इज गोइंग टू टेक टाइम, मुझे तो 4 घंटे चाहिए। बनाना लिया हुआ है, बनाना कह रहा है कि भैया मेरा तो काम खत्म हो गया, मैं तो 2 घंटे बाद आई एम ओवर। तो व्हाट विल हैपन, डू यू थिंक विल बी आइदर द फूड जो आपने फ्रूट लिया है, इट विल वेट फॉर मिल्क टू बी डाइजेस्टेड, या मिल्क जो है वो कहेगा कि भैया ओके चलो तुम चल रहे हो, अभी आगे छोटी आंत में, तो मैं भी साथ में चलता हूँ। कॉमन सेंस है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपका मिल्क बिना डाइजेस्ट हुए आगे मूव कर जाएगा। सेम वे फॉर ऑल। इसको मैं नेक्स्ट कल वाले चैप्टर में, मोस्ट लाइकली कल वाले में आएगा, कॉम्बिनेशन। जैसे मैंने अभी आपको फ्रूट और उसका कॉम्बिनेशन बोला, तो आप खुद समझ सकते हैं कि अगर वो पीएच का सब चैप्टर आपको समझ में आ गया और कौन सी चीज कहाँ डाइजेस्ट होती है वो समझ में आ गया, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही नहीं है। So if different foods are to be put into the stomach at the same meal, they should at least be of the same type that require the same set of digestive condition. Ideally, of course, only one food should be eaten at a time to ensure optimum. Again, यहाँ पे परेशानी हो रही यहाँ पे कहने में कि भी ये क्या चीज कह रही है भैया, हम तो दाल भी खाते हैं, तो रोटी भी खाते हैं, तो चावल भी खाते हैं, साथ में खा क्या रहे होते हैं, सब डाल रहे होता है, इधर चावल मुंह में जा रहा है, इधर दाल मुंह में जा रही है, इधर दही मुंह में जा रहा है, सब कुछ चल रहा होता है, और 2 घंटे बाद हम सोचते हैं कि भैया दूध भी पी लें। तो भाई मेरे, अगर मैं कह रहा हूं कि स्टमक के अंदर डाइजेस्ट प्रोसेस चल रहा है जिसको 2 से 4 घंटे लगने हैं, और उसके बाद छोटी आंत में जाना है, छोटी आंत में फर्दर टाइम लगना है, तो आपने 2 घंटे बाद दूध पी लिया, दूध तो अभी आपने अगर मान लो एक खाना खाया है जिसका अभी प्रोसेस चल रहा है स्टमक के अंदर, अभी आपका प्रोसेस चल रहा है, स्टमक से मूव नहीं किया, लेट अस से कि भी स्टमक में उसको 2 घंटे लगने थे, आपने 1.5 घंटे बाद कुछ मुंह में और डाल दिया,
तो स्टमक में जो खाना पड़ा हुआ है उसका तो आधा घंटा बचा है, आधे घंटे बाद उसको मुंह कर जाना है। लेकिन जो अभी आपने 1.5 घंटे बाद कुछ मुंह में और डाल दिया, चाहे एक एप्पल ही डाला है, चाहे एक अमरूद का दाना ही डाला, उसका स्टेटस क्या होगा भाई? क्या उसको अलग से हैंडल होगी? वो दूसरे किसी स्टमक के किसी दूसरे पार्ट में आके हैंडल होगा? उसी में क्या है, वहीं पे जहां पहले से रेडी टू मूव आपका प्रोसेस कंप्लीट हो पड़ा है, तो उसको भी वो बिना डाइजेस्ट किए आगे लेके चला जाएगा। कॉमन सेंस, आगे लेके जाएगा और क्या होगा? छोटी आंत पे लोड बढ़ेगा, सारे आपके लीवर पैंक्रियास सबके ऊपर लोड बढ़ेगा, एंड देन विल फाइंड ओवरवर्क, वी फैटीग हो गया, एजिंग हो गया। So when the body is abused by the modern diet, the colon, the large intestine often suffers the most. 70% हमारा immune system, please note, आजकल immunity के ऊपर बात हो रही है बहुत ज्यादा, तो हमारा immunity system 70% हमारा digestive system ये good bacteria handle करते हैं। तो हमारा जो बॉडी का जो अब्यूज है मैक्सिमम वो कॉलन को हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि सारी चीजें स्लिप हो चुकी हैं। डाइजेस्ट, मुंह में हमने चबाया भी नहीं है, वो पेट के अंदर सब कुछ उल्टा सीधा डाल दिया, सेम टाइम के ऊपर डाल दिया। आगे छोटी आंत में कितना हैंडल करेगी? तो बड़ी आंत के ऊपर लोड बढ़ेगा, वहां बैक्टीरिया सरवाइव नहीं करेगा, और वही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। तो मैं इम्यूनिटी के ऊपर जो फोकस है, आई एम स्ट्रेसिंग इट हियर, वी हैव टू बी केयरफुल। So poor diet, stress, hidden toxin in our food and water, and especially the overuse of antibiotics, they kill friendly bacteria. So our several years of conventional low fiber food, the average adult continuously carries around about 10 to 20 pound of fecal material. This may again look to be controversial to many, कि मैं क्या कह रहा हूँ, 10 से 20 पाउंड fecal material एक आम आदमी कैरी कर रहा है अपनी कॉलन वॉल्स पे, एंड इन मेनी इंस्टेंसेस द डिस्टेंडेड अब्डोमेन, जो पेट निकले हुए हैं, हम कहते हैं फैट है। नहीं भैया, वो फैट नहीं है, आपका सिस्टम ओवरवर्क है, वो कॉलन पे वो फीकल मटेरियल स्टोर हुआ पड़ा है। और ये रिसर्च है, बहुत से जो केसेस में जब पोस्टमार्टम किया जाता लोगों का, तो उसके ऊपर देखा गया है कि उसके पेट के अंदर 8-8, 10-10 किलो बड़ी आंत के अंदर वो मल जो था वो जमा पड़ा हुआ है। और हम सोचे चले भैया हमारा सेहत है, हम तो खाते पीते लोग हैं, खाते पीते परिवार से हैं, खूब मजे में लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो फैट है। फैट नहीं है भाई मेरे, वो आपका फीकल मटेरियल है, और वो कॉलन की हेल्थ है, वो आपका इम्यूनिटी सिस्टम है, एंड ओवर ए पीरियड यू हैव टू पे द प्राइस। The longer your food stays in your system, the more toxins and bacteria can get into your system. ये समझना जरूरी है कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो खाया वो जल्दी से जल्दी आगे मूव कर जाए। ज्यादा समय जितना लेगा उतने टॉक्सिन और बैक्टीरिया उसमें होंगे। तो यहाँ पे आएगा आपका मीट सबसे ज्यादा टाइम बॉडी में रहता है, so it will cause more toxins in this thing. So fortunately, a diet high in natural fiber, that is raw fruit and vegetable, can greatly aid the body in restoring the health of intestine. Waste material may move too slowly through the colon, mean the constipation, for a number of reasons. The usual reason is peristaltic. Nerves are paralyzed. Nerves paralyzed हो गई हैं by the toxicity from decaying foodstuff, or the passageway has become very small due to hardened features. जो 10-20 का इकट्ठा हुआ पड़ा है वहां पे, अगर उसमें लाइफ फोर्स नहीं है, पैरासिटिक नर्व्स की बात कर रहा हूँ, अगर वहां पे मूवमेंट नहीं है, हम अपना फिजिकल वर्क ज्यादा नहीं कर रहे हैं, लाइफ फोर्स चाहिए ना, मैंने बोला सिस्टम है लेकिन लाइफ फोर्स नहीं है, तो सिस्टम क्या करेगा? तो आपका यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन। So man's lengthy intestinal tract cannot handle meat quickly, जो पहले बात किया है, हमारा लेंथ जो है, जो मीट खाने वाले जानवर है उनकी जो लेंथ होती है इंटेस्टाइन की, उससे हमारी लेंथ ज्यादा है आई मीन बॉडी में ज्यादा देर रुकेगा उनसे, तो वो जो है ज्यादा समय रुकना मीन इनवाइटिंग द प्रॉब्लम। Length of small intestine is too long to handle putrefying meat and too short for grasses. इसको भी टच करूंगा। ग्रास का
आएगा कि हम जो पत्ते वाली चीजें और उसके ऊपर है कितना हम खा सकते हैं, क्या है क्या, उसके लिए हमारी इंटेस्टाइन डिजाइन है. लिटिल बिट ऑन मीट and eat your meat and lose your bone. So according to researcher, the more protein you take, the more calcium you excrete. A diet that contains 50% more protein than is needed may result in as much as 1% loss of bone. और ये आपको दिखेगा, दांतों पे दिखेगा, आर्थराइटिस में दिखेगा कि आपका कैल्शियम डिप्लीट हो रहा है. लेकिन प्रोटीन कितना चाहिए इसके ऊपर भी जानकारी होना चाहिए. कितना प्रोटीन चाहिए, छोटी कटोरी प्रोटीन की. आप एक बेबी को देखिए, छोटा न्यू बॉर्न बेबी, उससे मदर के मिल्क में कितना प्रोटीन है, बहुत कम, और उससे उसका ग्रोथ देखिए. लेकिन हम बड़े हो गए, हम कहते हैं भैया हमें प्रोटीन ज्यादा चाहिए. वी मे बी डैमेजिंग आवरसेल्फ. If protein is not needed by the body for tissue synthesis, it is returned to the liver, which create extra work for liver. Extra work for liver means gallbladder, भी आ गया, सब आ गया. Extra work for kidneys as they try to eliminate all the toxic byproduct. तो किडनी पे भी लोड आपने डाला, उस पे भी डाला. Excessive protein, whether from animal or vegetable, they decompose rots in the stomach and turns into poisonous ammonia. This ammonia in turn produces nitrosamine according to biochemists. So they are among the most potent cancer-causing chemicals known. Malignant tumors require amino acid for growth that only protein food can supply. The demand for protein for cancer cell is almost 10 times the amount as required by healthy tissue. Sufficient protein builds healthy body. Excessive protein builds tumors. ये सारे हल्का हल्का मैं टच कर रहा हूँ सब्जेक्ट को, डिटेल में बहुत कुछ अवेलेबल है. मिल्क के ऊपर कैल्शियम ऑफ मिल्क एंड चीज हैज बीन शोन टू बी फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ कैल्शियम. हम दूध पीते हैं, सोच के चलते हैं हमें कैल्शियम चाहिए, बट प्लीज स्टडी इट फर्दर. आप कैल्शियम ले नहीं रहे हैं, कैल्शियम डिप्लीट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव प्रोटीन इफ यू डोंट रिक्वायर इट. There are some people who increase their protein intake and reduce their carbohydrate intake in a bizarre effect to lose weight. On such a diet, weight loss and health loss do occur. Weight loss तो होगा, health loss भी होगा. The rationale of high protein. High protein में क्या होता है? Protein require much more body energy for digestion and metabolism than its supply. So this daughter says that the H is the end product of protein digestion are acidic. Urea सब चीजें बढ़ेंगी, which beyond a certain normal range, which start degeneration of body tissue producing this thing, and liver, kidney disorder, disturbances, arthritis. So another research from Massachusetts University, it says that carbohydrate starvation diet, low carb diet by a high protein diet actually creates a chemical imbalance in the brain. Now, how much to eat? A little touch on that. If you want to eat more, your health is not what you eat, your health is drawn by what you live. What we live decide. Appetite, हम कहते हैं भूख, भूख वो नहीं है कि हमें बस अभी खाना खाया, अभी समोसे की स्मेल आई तो हमें मन किया कि भैया लगा भूख है. वो भूख नहीं है. भूख समझना जरूरी है. When hungry and comfortable, it is true hunger. When hungry and uncomfortable, it is craving. वो हैबिट है, मन ट्रिगर कर रहा है, खा ले भैया, खा ले, मन कर रहा है खाने के लिए. We are uncomfortable. That is a craving. सबसे बढ़िया एग्जांपल आप ये देखिए, when a sick person misses a customary meal, it gets weak before it gets hungry. When a healthy person misses a customary meal, it gets hungry before it gets weak. समझने की बात है. So eat only when hungry. Real hunger. ऐसे चलते फिरते हम खाना खाएंगे, we will be abusing our body. Sir, Digest milk. Yes. कल के लिए नेक्स्ट सेशन कल में कर लीजिए, 8 बज गया है. वो दो स्लाइड. ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम. ये मिल्क का एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको हो सकता है अगर आज सफिशिएंट मैं इसके ऊपर टाइम नहीं दे पाऊं तो आप इसके ऊपर कल दोबारा कह सकते हैं. मिल्क में फर्स्ट स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इज दैट ऑफ कोएगुलेशन. दूध को फटना होता है. दूध को आपने दूध ले लिया लेकिन दूध को आगे कन्वर्ट होना पड़ता है.
अमीनो एसिड में, और छोटे बच्चों में एक प्रो होता है एंजाइम जिसको रेनिन बोलते हैं। ये आजकल 5वीं क्लास में बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम बड़े हो गए, हम सोचते हैं कि नहीं है, लेकिन वो बच्चों को पढ़ते हैं, बच्चे पेपर देते हैं, लेकिन माँ बाप उनको दूध ही पिलाते हैं, कहते हैं कि भैया सारी दुनिया पीती है। We'll see to it. Enzyme is said to be absent or there in very reduced quantity from the stomach. बड़े होते हैं जैसे हम, तुम्हारे स्टमक में वो कम हो जाता है। और ऑप्टिमम पीएच रेनिन के लिए 5 and 6.5 होता है, और हमारे स्टमक में पीएच हमने बताया है कि वो अराउंड 2 के आसपास होती है। लेकिन ये पीएच चाहिए जो रेनिन अगर आपको पेट में रहेगा तो उसमें पीएच 5 to 6.5 चाहिए। छोटे बच्चों में जो बॉर्न होते हैं उनके पेट के अंदर उनका पीएच यही होता है, रेनिन होता है। हमारे बड़े होने पे हमारे रेनिन नहीं हो जाता। This indicates that the digestive process required for digestion of milk are somewhat different from those required for other food, especially for other protein. बाकी प्रोटीन वो मिल्क से डिफरेंट है, उसको बाकी प्रोटीन की तरह मिल्क को लेके नहीं चला जा सकता। Milk taken alone will occasion the flow of digestive fluid, then this thing. So take milk alone, इसके ऊपर समय कम है, कल मेरे से बात करना चाहे मैं बात कर सकता हूँ। कभी दूध को हम क्यों कहते हैं कभी दूध घर से निकलते समय दूध नहीं पीना चाहिए, दूध ने क्या प्रॉब्लम कर दिया भैया। और फिर दूध आप देखिए, दूध गर्म पीने की बात करते हैं, बहुत ठंडा नहीं, गर्म, बहुत हाई ल्यूकवार्म। और देन दूध रात को पीने की बात करते हैं। इसके पीछे क्या सिद्धांत है, हम साइंस की बात कर रहे हैं। और लेकिन हम खाना खाते हैं उसके बाद घंटे बाद दूध जरूर पी लेते हैं बहुत से लोग। सो इट्स बेटर, दूध पीना ही है तो बेटर टेक इट अलोन। और एंड देन रिस्क अटैच्ड टू कंज्यूमिंग मिल्क। मिल्क का जो साइज है, मॉलिक्यूल साइज, वो बाकी सारे प्रोटीन से सबसे छोटा साइज होता है। अगर आपका मिल्क अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला मिल्क के साथ आपने कुछ और खाया तो दूध को आगे तो मूव कर गया, उसका प्रोसेस नहीं हुआ। सो अनडाइजेस्टेड मिल्क, उस जो मॉलिक्यूल हैं वो कन्वर्ट नहीं हुए, वो आपके बॉडी में डिपॉजिट होंगे और वो कैंसर, वो ये सब चीजों में, गैस, वो सब चीजों में कन्वर्ट होंगे। तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है ये मिल्क। लेकिन परेशानी हो रही होगी कि भैया मिल्क तो हम सारी उम्र पीते रहे हैं, अभी छोड़ें कैसे, आदत पड़ चुकी है। People in Japan, not only Japan, please do your research. You will find many countries that don't consume milk. Human milk is far superior to any other milk as food for human instinct. आप देखिए, जो मैं प्रोटीन की बात कर रहा था, ह्यूमन मिल्क वर्सेस सैंपल जो 1.1 ग्राम प्रोटीन 100 ग्राम मिल्क में 1.1 ग्राम प्रोटीन है। काउ मिल्क में 9.5 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ह्यूमन मिल्क में यानी कि जस्ट 1.1 ग्राम इतना प्रोटीन। एंड सी द चाइल्ड इज ग्रोइंग, और हम कितना प्रोटीन खाते हैं। सो व्हेन द फर्स्ट टीथ, जब दांत निकलने शुरू हो जाते हैं बच्चे के, तब ये रेनिन प्रोडक्शन पेट के अंदर मां के बनना बंद हो जाता है ऑटो में। सी द ब्यूटी ऑफ डिजाइन गॉड हैज डन। रेनिन बच्चों में भेजा है क्योंकि दांत नहीं है, उसको दूध ही चाहिए, और दूध भी माँ का आता है, और माँ का दूध भी तभी बनता है जब बच्चा पेट में होता है। Isn't the nature is telling something? और दूध बच्चा जैसे बड़ा होता है दूध बनना भी बंद हो जाता है। लेकिन हम बड़े हो जाते हैं, कहते नहीं दूध तो मुझे चाहिए, अपना नहीं तो किसी का भी चाहिए। ये इसको हम कहेंगे ये ट्रूथ है, ये राइट है? नहीं, हमारी विल पावर है, हमने एक आदत बना ली है, सारी दुनिया करती है, ठीक है, अच्छी बात है। So milk production in mothers of all creation stop around this time when the child आता कब है, जब बच्चा पेट में आता है तभी दूध आता है। So milk is meant for those child, the new coming child only, not for grown up. So follow the nature's indications of the normal feeding. All animals stop taking milk after a certain age, drawn by nature. Only human, they say हमको मिल्क चाहिए, अपना नहीं तो किसी का भी चाहिए। Can we justify? So we can abuse, we have willpower. God has said, do whatever you want. So historically, it is revealed that animals some time ago used to produce 200 pounds of milk a year. The modern cow may produce up to 15,000 pounds of milk a year, 75 times as much.
mean, is the milk any more a secretion? It is supposed to be secretion of the gland, or it is excretion. हम निकाल रहे हैं इंजेक्शन देके जबरदस्ती ऐसी तैसी करके हम अपना गांव की दूध निकाल रहे हैं. It is more a secretion. And then सभी गांव को ज्यादातर इंजेक्शन दिया जाता है ऑक्सीटोसिन, जो ज्यादातर बैंड है सभी कंट्रीज के अंदर, लेकिन यहाँ 10 रुपए में इंजेक्शन मिलता है. गांव को इंजेक्शन देते हैं दूध निकालने के लिए, और वो जो है जो केमिकल ऑक्सीटोसिन वो दूध में नहीं जाएगा. सो देयर इज ए रिस्क. ये सब डिफरेंट रेफरेंसेस है, ये कहाँ से लिए गए हैं, आप इसको फर्दर स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत से चीजें हैं जो मैंने कवर की हैं, जो आप लाइफस्टाइल में जो हम कर रहे हैं वहां पे लग रहा होगा आपको भी ये कुछ चीज कही है, चाहे हमको सही लग रही है, लेकिन चेंज करें कैसे, वो एक डिफरेंट मैटर है. कभी चेंज करें तो करें कैसे. एनीवे, सो आई थिंक आज का थोड़ा सा 5 मिनट ऊपर हुआ है, तो मैंने 2 चैप्टर जो टॉपिक लिए थे उसको मैंने कोशिश किया है टू डू जस्टिस टू दैट, और मैं समझता हूँ कि 1.5 घंटा मैंने बोर नहीं किया कुछ. नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. यू मे गिव सम योर फीडबैक. आप अभी को कहना चाहे कह सकते हैं या कुछ लिखना चाहें तो एक फीडबैक का आपको लिंक आया है, इसके ऊपर कुछ भी आप अपना फीडबैक दे सकते हैं. और इसको, क्योंकि यही जो लर्निंग आज की रही है, इसी के बेस के ऊपर आपका कल का कंटिन्यू होगा. वेरियस कल क्या मैं कवर करूंगा, जस्ट रफली इंडिकेट करने के लिए, इसके अंदर ये क्या है, टच ऑन ब्राउन राइस, क्या सही है क्या गलत है, क्यों. सॉल्ट के ऊपर आई टच अपॉन, देन ऑयल, white sugar, रेफ्रिजरेटेड फूड, कुक फूड, कुकिंग का आइडिया होना चाहिए. देन एक मैन और एनिमल्स में ईटिंग हैबिट और हेल्थ को लेके हम अपने आप को सुपीरियर कहते हैं, क्योंकि हमें विल पावर है, हम कुछ भी करते हैं, दैट डजंट मीन कि हम अपनी विल पावर का सही यूज कर रहे हैं. ईश्वर ने एनिमल्स को वो विल पावर नहीं दी, लेकिन उनका सिस्टम ऑटो में चलता है. कभी जानवरों को इतना बीमार होते हुए, अपना इंडाइजेशन होते हुए नहीं आपने देखा होगा, पेट निकले हुए हैं, कुछ गैस हो रही है, कुछ भी हो रहा है. हमको होती है क्योंकि हम अपना विल पावर का मिस यूज करते हैं. तो उसके ऊपर एक कंपैरिजन सा है. देन कल इस सब्जेक्ट के ऊपर होगा गाइडलाइन फॉर करेक्ट दिस थिंग. इसमें वेरियस कॉम्बिनेशन, क्या चीज किस जैसा खानी है, ये हम मेरे जो गुरु हैं उनसे जो मैंने सीखा है उसके ऊपर है. तो यूनिट प्रिंसिपल डिफरेंट किस कॉम्बिनेशन में स्नैक्स कैसे लेने हैं, चाय कैसे लेनी है, क्यों लेनी है, ग्रेन्स कैसे है, गुड़ और चीनी में क्या इशू है, और देन सॉल्ट कैसे है, देन जूसेस और वेजिटेबल कवरिंग उसके ऊपर हम कितनी रिमूव करते हैं, क्यों करते हैं, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए. देन दाल में हम घी डाल के खाते हैं बहुत लोग, क्योंकि हम कहते हैं अभी हम मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, बढ़िया है वो है, लेकिन क्या ये सही है गलत है, लेट्स जस्ट सी. देन कितना गैप होना चाहिए खाने में, क्यों गैप होना चाहिए, ये सब चीजें डेरिवेटिव हैं, सब ड्राइव्ड हैं जो अभी तक आपने समझा है. अगर अभी आपने सही समझा होगा तो मुझे इसके ऊपर आपको स्ट्रेस नहीं करना पड़ेगा समझाने के लिए. देन लास्ट में सम स्पिरिचुअल डायमेंशन, कि भैया खाने का सिर्फ यही एक हमारा पर्पज है कि अपना वो टेस्ट के लिए या अपना शरीर बनाने के लिए, या इससे ऊपर भी कुछ है, यही चीजें हैं. तो I leave it here. Just it was just to show कि मैं कल मैं क्या कवर करने जा रहा हूँ. So अगर आपको आज का अच्छा लगा होगा तो don't miss the tomorrow class, क्योंकि Thank you sir, thank you and big round of applause to everyone. Thumbs up. बहुत अच्छा आपने बताया है, और मैं चाहूंगा कि जितने लोग पार्टिसिपेंट्स आज आए हैं, they also come with friends and relatives.